آغاز میں آپ کو خبر دیں، شہر قائد میں 29 مارچ تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا SBCA افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ میئر کراچی کی زیر صدارت انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ مرتضی وہاب کی ہدایت، کہا سکشن پمپ اور دیگر ضروری مشینری سڑکوں پر موجود رہے گی۔ شہر قائد میں 29 مارچ تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا SBCA افسر کو فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ میئر کراچی کی زیر صدارت انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ مرتضی وہاب کی محکمہ میونسپل سروسز، فائر بریگیڈ اور سٹی وارڈنز کو الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا سکشن پمپ اور دیگر ضروری مشینری سڑکوں پر موجود رہے گی۔ ضلع انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کو مکمل متحرک رہنے کا حکم۔ چیف سیکریٹری سندھ کی انتظامیہ کو 7 دن فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ نکاسی آب، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہنگامی اقدامات، خطرناک بل بورڈز کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت متوقع بارشوں کے پیش نظر اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی اور اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ چیف سیکریٹری نے آئندہ 7 روز تک تمام افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی کے بعد PDM میں فوری ایڈوائزری جاری کرے۔ ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کو مکمل متحرک ہونے، نکاسی آب کے لیے مشینری فعال رکھنے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تیز ہوائوں کے پیش نظر خطرناک بل بورڈز کے خلاف فوری کارروائی اور عوامی آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ سندھ جاوید عالم اوڈھو نے روٹری کلب کراچی کے 32ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کی، جہاں سندھ کے انتظامی چیلنجز، جمہوری ماڈلز اور جدید پالیسنگ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر روٹری کلب کے کراچی کی صدر نائلہ مسعود، اعزازی سیکریٹری زہیر علی شریف اور دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے سندھ کو انتظامی اور پولیسنگ کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے جدید اور ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ کے منصوبے جیسے چلاننگ اور سیف سٹی پروجیکٹ پر روشنی ڈالی اور جرائم کی روک تھام، امن و امان کے قیام اور کرائم ڈسکشن کی اہمیت پر زور دیا۔ اعزازی سوالات کے جواب دیے گئے اور اراکین نے سندھ پولیس کی کوششوں کو سراہتے ہوئے تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ تقریب کے اختتام پر IG سندھ کو تعریفی سند اور یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کو فعال بنانے کے لیے متحرک۔ مراد علی شاہ کا اچانک دورہ، سیکریٹریٹ میں ہلچل۔ دفاتر میں افسران کی حاضری چیک کی، غیر حاضر افسران پر سخت ایکشن کا عندیہ، وضاحت طلب کرنے کا حکم۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ کیا۔ تغلق ہاؤس کی رینوویشن پر وزیر اعلیٰ پر برہم، جلد تکمیل کا حکم دیا۔ واضح کیا وقت پر آئیں اور کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ اور تغلق ہاؤس کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کی کارکردگی اور ملازمین کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سب سے پہلے نیو سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے زیر تعمیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے تغلق ہاؤس میں اسکول ایجوکیشن، داخلہ، ایکسائز، مائنز اینڈ منرلز، CMIT اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دفاتر کے دورہ کیا اور افسران کی حاضری چیک کی۔ چند افسران کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت طلب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہنا تھا کہ ملازمین اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، ناظم آباد سے لیاقت آباد 10 نمبر آنے والی شاہراہ انڈر پاس کے قریب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ گزشتہ بارش میں بھی یہ سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی اور کئی گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے دوبارہ بارش کی پیشگوئی کے باوجود سڑک کی مرمت نہیں کی گئی۔ مزید تفصیلات اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بارش کی پیشگوئی کا بھی متعلقہ اداروں پر کوئی اثر نہ ہو سکا۔ شہر کی بیشتر سڑکیں تباہی کی داستان سنا۔ لیاقت آباد 10 نمبر کی سڑک گزشتہ کئی ماہ سے خستہ حال ہے۔ بارش کا پانی مستقل کھڑا رہنے کے باعث سڑک پر گڑھے پڑ گئے ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں ہم روزانہ اس سڑک سے گزرتے ہیں، بارش کو یدوب مشکلات وہی ہیں۔ بارشوں میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اس پہ کوئی کیئر نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی اس کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے، بس اس کا بہت برا حال ہے۔ اکثر یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بڑے خطرات ہیں۔ حکومت سے مطالبہ یہی ہے کہ کراچی کا جو کھنڈر بنا دیا ہے اس کو بہتر کریں، خاص طور پر روڈوں کو جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، انسانی جان کا خطرہ ہے، اس کو بہتر بنائیں۔ گاڑیاں ادھر پھنس جاتی ہیں، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ بارش ہوتی ہے اوپر تک پانی آتا ہے اور بکرے بھی ڈوب جاتے ہیں ہمارے، اور لوگ باگ گرتے بہت ہیں جگہ جگہ پہ، اور لیڈیز بھی آدمی بھی سب گرتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ محکمہ بلدیات اور متعلقہ حکام فوری طور پر اس سڑک کی مرمت کرے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کسی حد تک کمی آ سکے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔
AB सीनियर रोड बरसों से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पानी जमा रहना मामूल बन गया है। इलाके में कीचड़ और गंदगी ने भी डेरे जमा लिए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई गई मगर इक़दामात नहीं किए गए। फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत कराई जाए। तफसील दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में देखिए। की सड़क खस्ता हाली, शहरी अजाब में इंतजामिया गायब। AB सीनियर रोड की टूट फूट ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। बारिश के बाद पानी जमा होना मामूल बन गया। शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज करवाई गई मगर अब तक कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए। 2.5-3 साल हो गए ये जो सारा काम जितना सारा करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद जो सारा का सारा रुक जाता है। उसके बाद जो बारिश होती है सारा पानी अंदर चला जाता है। अब इन्होंने काम शुरू करा है तो वो भी इतने सुस्त रवैये से कर रहे हैं कि काम जो है बढ़ नहीं रहा है आगे, वहीं के वहीं जो रुका हुआ ही है। आ रहा है काम जा रहा है, उसके बाद भी रुका हुआ है। सारा सामान कर दिया इन्होंने, देखो सारी कीचड़ है यहाँ पे। उसके बाद दुकानों के अंदर पानी चला जाता है सारा। 3 से 4 साल रोड टूटा बन के दे ही नहीं रहा। अभी इन्होंने बोला रोड बनाएंगे, रोड रुक गया। पिंचिंग करवाने को, लेकिन पिंचिंग में खत्म हो गई। कह रहे थे ब्रिक लाइन ठीक हूँ, लाइन ठीक नहीं, पानी वैसे रोडों बाहर। सड़क पर जमा पानी और कीचड़ ने न सिर्फ माहौल को आलूदा कर दिया है बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि हुकाम की अदम तवज्जोही ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। नाज़रीन, गर्म मौसम के आगाज़ से ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलशन ज़हूर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। शहरी कहते हैं बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ गई हैं, जबकि फ्राहमी आब का मसला भी सर उठा रहा है। ये 12 घंटे होता है, कभी कभी नहीं होता है, ईद का दिन भी नहीं होता है। इस वजह से बस काम कमज़ोर है, काम बिल्कुल नहीं है। और गैस बिजली भी नहीं होता है, बंदिश वजह से नहीं आते हैं ग्राहक नहीं आते, घर में होते हैं, इस वजह से कोई नहीं आता है। क्या हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1225 पॉइंट्स इजाफे से 1,53,966 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 4,702 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बाद मार्केट में तेजी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। ईद तातीलात के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में दिन भर तेजी रही। इंडेक्स 1,225 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,53,966 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 4,702 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। बुलंद तरीन सतह 1,57,442 रही। स्टॉक माहिर अरसलान के मुताबिक अगर जंग के बादल मजीद कमजोर हुए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। जैसे ही आप देखेंगे कि हालत बेहतर होंगे, जंग के बादल जैसे ही छटेंगे, आप देखेंगे कि मार्केट अगेन वो हमें उसी ट्रैक पे नज़र आएगी जो हमने छोड़ा था। आप देखेंगे कि वो 1,91,000 तक इंडेक्स गया था और जैसे ही हालत ख़राब हुआ है मार्केट के अंदर जो है ना वो डाउनफॉल शुरू हो गया। इंशाल्लाह होपफुली जैसे ही सीज़ फायर का जैसा ऐलान होगा आप मार्केट को देखेंगे कि वापस अपने ट्रैक पे आती हुई हमें नजर आएगी। मार्केट में गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जारी मंदी के बाद आज सरमायाकारों ने खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 16,300 रुपये महंगा होकर 4,64,062 रुपये पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 570 रुपये महंगी हो गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $163 महंगा होकर $4,413 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 16,300 रुपये महंगा होकर कीमत 4,64,062 रुपये पर पहुंच गई। साथ ही 10 ग्राम सोना 13,997 रुपये महंगा होकर 3,97,858 रुपये पर पहुंच गया है और 1 तोला चांदी 570 रुपये महंगी होकर 7,454 रुपये पर पहुंच गई है। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कराची गेटवे टर्मिनल को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि अगर डीमरेज चार्जेस ख़त्म ना किए गए तो मुल्क भर में कारोबार बंद कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कराची गेटवे टर्मिनल को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि अगर डीमरेज चार्जेस ख़त्म ना किए गए तो मुल्क भर में कारोबार बंद कर दिया जाएगा। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कराची गेटवे टर्मिनल को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची गेटवे टर्मिनल पर लिफ्टिंग के शदीद मसाइल। इंपोर्टर्स ने पोर्ट इंतजामिया को गफलत का मुर्तकिब ठहरा दिया।
स्टील इंपोर्टर्स का KGTL को 72 घंटों का अल्टीमेटम, मुल्क गिर कारोबार बंद करने की धमकी। सदर आयरन स्टील हम्माद पूनावाला ने कहा कि टर्मिनल पर इंपोर्ट के माल की लिफ्टिंग में शदीद मसाइल दरपेश हैं, जबकि 2 माह कबल विसल्स की ज़्यादा आमद से लोडिंग का निज़ाम मुतासिर हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पोर्ट इंतज़ामिया की गफलत के बायस इंपोर्टर्स पर डिमर्ज चार्जेस आयद किए गए। इन्होंने हमसे सारा कमिटमेंट किया, सारा पेपर वर्क कंप्लीट कराया, लेकिन अभी तक वो जो करोड़ों के अंदर जो हमारे डैमेज के रिफंड है वो हमें नहीं मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें भाई सारा डैमेज दे दें, लेकिन जो इनकी गफलत की वजह से जो डैमेज हमारे इंपोर्टर्स को लगा है वो हमें रिफंड दें, लेकिन हमें कोई इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा। हम्माद पूनावाला ने कराची गेटवे टर्मिनल को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया कि अगर डिमर्ज चार्जेस ख़त्म न किए गए तो मुल्क भर में कारोबार बंद कर दिया जाएगा। 72 घंटे में अगर इन्होंने हमारे ये मसाइल हल नहीं किए तो हम टोटली पूरा पाकिस्तान स्टील के जितने भी इंपोर्टर्स हैं ना वो ड्यूटी भरेंगे और ना वो अपना मटेरियल लिफ्ट करेंगे और उस पर प्रॉपर स्ट्राइक पे जाएंगे हम। सदर आयरन स्टील ने मुतालबा किया कि पोर्ट की गलतियों के बायस लगने वाले डिमर्ज फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ, बसूरत दीगर काम बंद कर देंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोलियम डीलर्स पंप्स बंद करने के ऐलान से दस्तबरदार। 26 मार्च के बाद जनरल बॉडी इजलास में आइंदा का लाया अमल तय होगा। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल पंप्स बंद होने का खतरा टल गया। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान के मुताबिक आइंदा के लाहे अमल के तयन के लिए 26 मार्च के बाद मुल्क भर के डीलर्स का अहम इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। हमने 24 को ही अनाउंस कर दिया, जो हमें 26 को करना चाहिए, और हम अपनी जगह कायम हैं। हमारा कोई मुतालबा नहीं माने, हम स्ट्राइक करेंगे 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 जब तक हमारे मुतालबात। अब्दुल समी खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मौजूदा मार्जिन 2.5 रुपए पर कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। डीलर्स 8% मार्जिन से कम पर बात नहीं करेंगे। हमारे मार्जिन जो है जब 55 रुपये बढ़ गया तो और नीचे आ गया। हम उस वक्त मार्जिन बढ़ाना चाहते थे और इन्होंने कीमत बढ़ा दी, उसी हिसाब से इनको मार्जिन हमें बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ाया। हमें इस वक्त 2.5% मिल रहा है। हम कम से कम इतना है कि गुजारा हो जाए, और 8% से कम तो हम तैयार नहीं होंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हुकूमत हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं। जनरल बॉडी इजलास में पंप्स बंद करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कैमरामैन वाहिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में इजाफे को खुशाइंद करार दे दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन MS अदनान कहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को महंगा करना अच्छा फैसला है। इकदाम से आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वसीम भाई, ये जो लग्जरी गाड़ियों के ऊपर जो हुकूमत ने जो है ये इसका दिया है, और ये मैं बोलता हूँ अच्छा इकदाम है, क्योंकि इस पे जो है बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो फ़ायदा ही है, क्योंकि हमारे पास मेन ये डीजल है। महंगाई जो है वो इसके ऊपर जो है हुकूमत अगर हिकमत अमली बना रही है, जंग के आपको पता है समा है और तमाम जो है मुल्क डिस्टर्ब है, तो उसकी जो इकदार बनाई है, हिकमत अमली बनाई है हुकूमत ने, अच्छी बनाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर अगर बटन डाला जाए तो मुल्क की मैशियत भी नहीं बैठती। आपको पता है कि डीजल और अगर बड़ी गाड़ियों के ऊपर हो तो किराया और आपको पता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर जितने भी मामला हैं, अगर ट्रांसपोर्ट की सूरत के ऊपर होगा तो आपको पता है कि फिर तमाम महंगाई अभी बोझ जो है वो आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते है। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट का सिलसिला जारी। 1 मार्च से अब तक 8000 से ज़ायद कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट की गई है। तर्जुमान KPT के मुताबिक गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 8313 कंटेनर्स की हैंडलिंग की गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर 1827 कंटेनर्स हैंडल किए गए, जबकि कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड पर 1200 कंटेनर्स की हैंडलिंग की गई। साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल लिमिटेड पर सबसे ज़्यादा 5286 कंटेनर्स की हैंडलिंग रिकॉर्ड की गई। KPT के मुताबिक कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है, जो बंदरगाही सरगर्मियों में इस्तेहकाम और तजारती अमल में बेहतरी की अक्कासी करता है।